امریکہ کے ساتھ زیر غور 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت پر ایرانی سپریم کونسل کا اختلاف برقرار۔ ایرانی وزیر خارجہ نے نکات پر دستخط سے قبل ترمیم کا امکان ظاہر کر دیا۔ مجوزہ معاہدے میں جوہری پروگرام پر مذاکرات فی الحال مؤخر۔ پہلا مرحلہ مفاہمتی یادداشت پر مشتمل جبکہ دوسرے مرحلے میں حتمی معاہدہ ہوگا۔ پہلے مرحلے کے نکات پر مکمل عمل درآمد نہ ہوا تو آگے نہیں بڑھیں گے۔ عباس عراقچی کا دو ٹوک موقف۔ واضح کر دیا کہ پہلے مرحلے میں ایٹمی پروگرام پر بات نہیں ہوگی۔ آبنائے ہرمز پہلے والی پوزیشن پر واپس نہیں جائے گا۔ تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا جائے گا۔ ایران دھمکیوں کے آگے سر نہیں جھکائے گا۔ ایران کی تلوار ہمیشہ آبنائے ہرمز پر لٹکتی رہے گی۔ معاہدے میں لیبنان سمیت ہر محاذ پر جنگ کا خاتمہ شامل ہوگا۔ امریکی ناکہ بندی ختم اور آبنائے ہرمز کھولنا عبوری معاہدے کا حصہ ہے۔ امریکہ نے عہد کیا کہ وہ جنگ شروع کرے گا، نہ ہی دھمکیوں کا سہارا لے گا۔ واشنگٹن اور تہران اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ منجمد ایرانی فنڈز کی واپسی کے لیے طریقہ کار پر اتفاق ہونے کی نوید۔ امریکہ ایران معاہدے کے حتمی مسودے پر فیصلہ ساز اداروں کا اجلاس۔ مفاہمتی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دینے کے آخری مرحلے میں ہے۔ ممکنہ معاہدے پر دستخط کب اور کہاں ہوں گے فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل باقائی کا بیان۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اسی ہفتے یا پیر تک ایران سے ڈیل ہونے کی توقع۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ۔ سوئٹزرلینڈ نے امریکہ ایران امن معاہدے کی تقریب کے لیے میزبانی کی پیشکش کر دی ہے۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ معاہدے پر دستخط کی تقریب جنیوا میں ہوئی تو وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ ایران مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت کا خیر مقدم۔ ایران کو معاہدے پر دستخط کرتے ہی فوری طور پر کچھ نہیں ملے گا۔ معاہدے کے نکات پر جتنا زیادہ عمل ہوگا اتنی ہی معاشی مرات دی جائیں گی۔ ایران کا طرز عمل دیکھتے ہی اقتصادی پابندیوں میں نرمی کی جائے گی۔ ایران جوہری پروگرام کو بتدریج ختم کرے گا۔ افزودہ یورینیم ایران سے منتقل کر دی جائے گی۔ مجوزہ معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز دوبارہ کھول دی جائے گی۔ امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کا سینئر امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ۔ امریکی صدر نے ایران کی منجمد $24 ارب فنڈ جاری کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی لیکن وہ عوام کی سطح پر یہ اعلان نہیں کرنا چاہتے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا دعویٰ۔ امارات نے ایران کو فنڈز کی منتقلی سے متعلق خبریں یکسر مسترد کر دیں۔ اماراتی وزارت خارجہ نے زیر گردش خبروں کو جھوٹ اور بے بنیاد قرار دیا اور دو ٹوک پیغام دیا کہ ایران کو منجمد رقم جاری کی گئی نہ ہی منتقلی ہوئی۔ امریکی فوج نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی ایرانی کوشش کو ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ تجارتی جہازوں کی طرف سے آنے والے کئی ڈرونز مار گرا دیے گئے۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ ڈرونز تجارتی بحری آمد و رفت کے لیے خطرہ سمجھے جا رہے تھے۔ آبنائے ہرمز میں اب جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے اور بین الاقوامی تجارتی راہداری نقل و حمل کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ حکومت نے مسلسل 5ویں بار پیٹرول سستا کر دیا ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں $4 کی کمی، نئی قیمت $373.78 ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ $2 کمی کے بعد $378 ہو گئے۔ مٹی کے تیل کی قیمت $1.49 فی لیٹر مقرر، نئی قیمت $282.19 مقرر۔ پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام پر سب سے بڑا بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ آئندہ مالی سال پیٹرولیم لیوی کی مد میں $1676 ارب سے زائد کی وصولی کا تخمینہ۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافے کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح کم سے کم تنخواہ جو منیمم ویج میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی
18 खरब 77 अरब 10 करोड़ रुपए के हजम का वफाकी बजट पेश। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8 खरब 5 अरब रुपए। दिफाई अखराजात के लिए 3000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ। 4 स्लैब पर टैक्स में कमी और सरचार्ज खत्म करने का ऐलान। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों और पेंशन में 7% तक इजाफे का ऐलान। कम अज कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 99B के तहत छोटे दुकानदारों के लिए फ़िक्स रेट सिस्टम मुतारफ़ करने की तजवीज़ है। इस सिस्टम में वो दुकानदार ला सकते हैं जिनकी सालाना फ़रोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम है। वो इस निज़ाम के तहत अपनी सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़। इस सिस्टम में वो दुकानदार आ सकते हैं जिनकी सालाना फरोख्त 20 करोड़ रुपए से कम है। छोटे दुकानदार अपनी सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। इस टैक्स में दुकानदार अपना विद होल्डिंग एडजस्ट करवा सकेंगे। छोटे दुकानदारों को गोशवारे जमा कराते वक्त कम अज कम 25,000 रुपए जमा कराना होंगे। दुकानदारों का रूटीन में कोई ऑडिट नहीं होगा। फिक्स टैक्स सिस्टम का इंतखाब करने वाले दुकानदारों को सब्सिडेंस की तख्ती दी जाएगी। इस तख्ती की मौजूदगी में FBI एहलकारों को पूछगछ के लिए दुकान में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। जायदाद की मुंतली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स को माकूल बनाते हुए फाइलर्स के लिए खरीदारी पर टैक्स 2.5% से 1.5% करने की तजवीज़ है और फ़रोख्त पर 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़ है। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदारी और फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी। जायदाद खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% कम करके 1.25% कर दिया गया। फाइलर्स के लिए जायदाद फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 5.5 से कम करके 2.75% कर दिया गया। हम दरामद करने वाली जो गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां दरामद होती हैं उसमें 2000 सीसी से बड़ी और 3000 सीसी तक की SUVs पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर रहे हैं। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पे भी हम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। इस टैक्स का इतलाक 2 करोड़ से महंगी लग्जरी EV पर भी होगा। दरामद की जाने वाली गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2000 से 3000 सीसी तक SUVs पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। नई ऑटो पॉलिसी वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी के ज़ेरे गौर। वज़ीर ख़जाना ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों और बसेस पर मौजूदा रियायती निज़ाम बरकरार रखने की नवीद सुना दी। दरामद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रक्स पर 1% सेल्स टैक्स सहूलत की तजवीज़। डिजिटल बैंकिंग सहूलत से मुस्तफीद होने वालों की तादाद 13 करोड़ 30 लाख हो गई। पिछले साल के 5 लाख के मुकाबले में 16,77,000 ताजर डिजिटल पेमेंट के निज़ाम से जुड़ चुके हैं। वज़ीर ख़जाना ने सूरत-ए-हाल डिजिटल ट्रांजैक्शन और कैशलेस इकॉनमी के फ़रोग़ में एक बड़ी पेशरफ्त करार दी। मुल्की और फिर IMF की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक हमें टैक्सेस हमें लगाना पड़े ताकि जो मईशत माजी के कई सालों पर मुहित जो एक हचकोले खा रही थी उसको स्टेबल किया जाए। गुज़िश्ता 2 बजट में IMF की हिदायत पर टैक्सेस लगाने पड़े ताकि हिचकोले खाची मईशत को मुस्तहकम किया जाए। तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने के बावजूद मईशत आज मुस्तहकम है। मौजूदा हुकूमत के तीसरे बजट से मईशत का पहिया तेजी से चलना शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। बजट पर भरपूर साथ देने पर एहतजाजी जमातों से इजहार तशक्कुर। मुल्क के लिए कुशादा दिली का मुजाहरा करने पर सूबाई क़यादत के जज्बे को सराहा। बजट के बाद अपने बयान में वज़ीर आज़म ने माली साल 2026-27 के बजट को मुआशी तरक्की का बजट करार दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत दे दी। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत करती है। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। लीगी अरकान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे, शहबाज शरीफ का बयान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई बजट में वफाकी तजावीज़ शामिल न करने का फैसला। सूबाई बजट में वफाकी तजावीज़ बानी से मुलाकात से मशरूत कर दी गई। कराची के रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में डीजी रेंजर्स के सरबराही में मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। सिंध भर में अमन अमान की सूरत हाल खुसूस मुहर्रम के इंतजामात का खुसूसी जायजा लिया गया। जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से लाहे अमल की मंजूरी। डीजी रेंजर्स की बैन सूबाई दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग को मजीद सख्त करने की हिदायत। कराची के इराक़े औरंगी टाउन सेक्टर 14 में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 2 नौजवान जाँ बहक, 2 गिरफ्तार। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के बाहर निजी एम्बुलेंस ड्राइवर्स में झगड़ा, फायरिंग और तशद्दुद से बाप बेटे समेत 3 अफराद जख्मी। साहिवाल पुलिस की कराची में कार्रवाई। अगवा होने वाला 10 साला बच्चा बाहिफाजत बाजियाब। अगवाकार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई में सिंध की जानिब से गर्मी की शिद्दत में कमी और बाज़ अजला में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। आज और कल मुख्तलिफ अजला में गरज चमक और हल्की बारिश मुतवक्की। कश्मोर, शिकारपुर, घोटकी, जामशुरू, दादू, हैदराबाद और मीरपुर खास में बारिशों का इम्कान। सैरक और जज़ीरा खुशम में धमाकों की आवाज़ें ईरानी बहरिया की जानिब से कार्रवाई का नतीजा थी। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी बहरिया ने आबनाए होर्मुज़ से बगैर इजाज़त गुजरने वाले जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई की। ईरान मुआहिदा आसान मगर अमल दरामद बहुत मुश्किल है। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खदशात का इजहार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक असल मुश्किल मरहला मुआहिदे पर दस्तखत के बाद शुरू होगा। अमरीकी फौज ने ईरान का अफजूदा यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर ली थी, ताहम ट्रंप ने मंसूबा रोक दिया। अमरीकी चैनल CNN का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी जनरल डैन केन ने गुज़श्ता माह फ्लोरिडा हेडक्वार्टर्स का हंगामी दौरा किया, जहां ईरान में ज़मीनी फौज भेजने से मुतालिक मंसूबे पर ब्रीफ किया गया। बरतानिया में फ़लस्तीन के हामी अफराद को इसराइली दिफाई कंपनी पर हमले के इल्ज़ाम में कैद की सजाएं सुना दी गईं। फ़लस्तीन एक्शन नामी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले 4 कारकुनान को 5 से 8 साल तक कैद की सजा। मैक्सिको के बाद कनाडा और अमेरिका में भी फुटबॉल वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीबात। मेज़बान मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी। मेज़बान कनाडा और बोस्निया के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। अमेरिका और यूरुग्वे के दरमियान मैच जारी।